Civil society organizations, a new form of mass pressure tactics in India. सिविल सोसाइटी संगठन भारत में सामूहिक दबाव प्रणाली का एक नया रूप. India has a very large number of civil society organizations, CSOs. That is, organizations established by citizens of the country to pursue certain interest. भारत में बड़ी संख्या में सिविल सोसाइटी संगठन सीएसओ हैं, जिनका अर्थ है ऐसे संगठन जिन्हें देश के नागरिक ने स्थापित किया है ताकि वे विशेष हितों के लिए कार्य कर सकें. Many of the organizations act as pressure groups on the government to promote implementation of policies in their areas of concern. इनमें से कई संगठन सरकार के समक्ष दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं ताकि ये अपने से संबंधित क्षेत्रों में नीतियां लागू करने को बढ़ावा दे सकें. These organizations are run by ordinary persons who feel strongly committed to certain issues. ये संगठन आम व्यक्तियों द्वारा चलाए जाते हैं जो विशेष मुद्दों के प्रति सशक्त समर्पण का अनुभव करते हैं. Many ordinary persons come together informally or formally to share their feelings about different issues and prevailing social injustice. कई आम व्यक्ति औपचारिक या अनौपचारिक रूप से एक साथ मिलकर विभिन्न मुद्दों पर एवं समाज में फैली अराजकता के बारे में अपने विचारों को साझा करते हैं. Civil society is an interface between the state and individual. Civil society राज्य एवं व्यक्ति के बीच में एक कड़ी है. Civil society organizations broadly refer to the active participation and engagement of men and women in groups, associations, organizations, voluntary agencies on the issues of common concern like environmental protection, price rise, prevention of corruption, etc. सिविल सोसाइटी संगठन उन्हें कहा जाता है जो पर्यावरण सुरक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार की रोकथाम आदि जन सामान्य से जुड़े मुद्दों पर महिलाओं एवं पुरुषों के समूहों, संगठनों, संघों अथवा स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा उनकी सक्रिय भागीदारी एवं संलग्नता को दर्शाते हैं. The 21st century witnessed the active involvement of people through civil society organizations, which could be seen in number of protest movements across the country. 21वीं सदी ने देश के विभिन्न भागों में हुई विरोध प्रदर्शन जैसी गतिविधियों से सिविल सोसाइटी संगठन के द्वारा लोगों की सक्रिय भागीदारी को प्रत्यक्ष रूप से देखा है. People take up issues of gender discrimination, child labor, street children, and so on, and contribute through individual and collective actions. लोग लैंगिक भेदभाव, बाल मजदूरी, आश्रयहीन बच्चों आदि के मुद्दों को उठाते हैं और इन पर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से योगदान देते हैं. Such organizations are able to mobilize public opinion because these issues are relevant to many people in society. इस तरह के संगठन जनमत तैयार करने में सक्षम होते हैं क्योंकि ये मुद्दे समाज के बहुत लोगों से जुड़े होते हैं. Some of the civil society organizations include मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS राजस्थान, People Union for Civil Liberties PUCL, National Alliance of People's Movement NAPM,
National Alliance of Women's Organization, NAWO, Medico Friends Circle, MFC, and many others. Okay. इस तरह के कुछ सिविल सोसाइटी संगठनों में शामिल है मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS राजस्थान, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी PUCL, नेशनल अलायंस ऑफ पीपल मूवमेंट्स NAPM, नेशनल अलायंस ऑफ विमेंस ऑर्गेनाइजेशन NAWO, मेडिको फ्रेंड्स सर्कल MFC एवं अन्य कई. Such organizations put pressure on the government for changing policies on many important issues such as corruption, human rights, livelihood of different people, environmental protection, women empowerment, educational and health issues. इस तरह के संगठन सरकार पर दबाव डालते हैं ताकि कई महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार, मानवाधिकार, विभिन्न लोगों की आजीविका, पर्यावरणीय सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे आदि से संबंधित नीतियों में बदलाव किया जा सके. Civil society organizations help to reach out to many people. सिविल सोसाइटी संगठन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. They provide a channel for people to express their grievances and also work constructively for the change. ये लोगों के लिए एक चैनल प्रदान करते हैं ताकि वे अपनी समस्याओं को व्यक्त कर सकें और ये संगत रचनात्मक रूप से परिवर्तन के लिए कार्य करते हैं. They point out when the government is not fulfilling its promises to the nation. देश के प्रति किए गए वादों को जब सरकार पूरा नहीं करती तो ये संगठन उस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं. They attract idealistic and committed young people, even acting as a space for teaching and learning good citizenship. ये आदर्शवादी एवं समर्पित युवा लोगों को आकर्षित करते हैं और उनके लिए अच्छी नागरिकता को सिखाने एवं सीखने का स्थान भी बनते हैं. Good citizens are vigilant and alert. Civil society organizations are formed by such vigilant citizens. Civil society देखिए, अच्छे नागरिक सतर्क एवं जागरूक होते हैं. सिविल सोसाइटी संगठन इसी प्रकार के सतर्क नागरिकों के द्वारा गठित होते हैं. Many of them struggle for the larger social good, often sacrificing their own comfort, time and energy. इनमें से कई बड़े सामाजिक हितों के लिए संघर्ष करते हैं और अपने निजी सुख, समय एवं ऊर्जा का त्याग करते हैं. Some important leaders of civil society organizations in recent times include अरुणा रॉय, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ईला भट्ट, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन, मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड अन्ना हजारे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन. हाल ही में हुए सिविल सोसाइटी संगठन के कुछ प्रमुख नेता हैं अरुणा राय, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ईला भट्ट, स्वनियोजित महिला संगठन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विमेंस एसोसिएशन, मेघा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन और अन्ना हजारे, इंडिया अगेंस्ट corruption. All these organizations involve a large number of people who struggle to bring about changes in state policies. ये सभी संगठन बड़ी संख्या में उन लोगों को शामिल करते हैं जो राज्य की नीतियों में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करते हैं.
Many of the organizations and groups believe in following non-violent methods. कई संगठन एवं समूह अहिंसात्मक तरीकों को अपनाने में विश्वास रखते हैं.